Hello class, in this lecture we are taken here next point, coefficient of variation. Now what is the coefficient of variation? The relative measure corresponding to the standard deviation has specific name. It is called as the coefficient of variation. It is defined as coefficient variation is equals to sigma x divided by x bar into 100. It is always written with the percentage sign. Your coefficient of variation is equals to this sigma x. What is the sigma x? Sigma x is nothing but the standard deviation which we are taken in last lecture. So what is here sigma x? Sigma x is the standard deviation, and coefficient of variation is equals to standard deviation divided by x bar. X bar is nothing but the arithmetic mean. So sigma x divided by x bar into 100, it is called as the coefficient of variation. We will take one example. So the arithmetic mean of the run score by the three batsmen Vijay, Shubham and Kumar in the same series of 100, here 10 inning are 50, 48 and here 12 respectively. The standard deviation of their runs are respectively 15, 12 and 2, who is the most consistent of the three. So what is the solution of this? Solution is sigma x divided by v bar into 100, and 15 by 50 into 100 is equals to 30%. Okay. Now next is sigma x divided by s bar into 100 is equals to 12 into 48 into 100 is equals to sigma x. देखो इन्होंने हमें क्या क्या दिया गया है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द रन स्कोर्ड बाय 3 बैट्समैन दिए हैं, और उन्होंने क्या किया है ऑफ द सेम सीरीज. सीरीज कितनी है? 10 इनिंग की सीरीज है. यहाँ पे अरिथमेटिक मीन कितना है? एक्स बार इज व्हाट? 50, 48 and 12 is already given to us. What is the standard deviation? ST means sigma x is given as the 15, 12 and 2. So who is the most consistent? तीनों में से ज़्यादा consistent कौन है? So हम यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट हर एक का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स हम विजय का करेंगे. क्या है आपका? सपोज विजय के लिए मैं v लिख रही हूँ. सिग्मा हियर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100 आएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे विजय का कितना है? 15 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100. सो आई गेट हियर 30. नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100 एंड थर्ड वन 2 divided by 12 into 100. So as I calculate coefficient of variation of each term, so what I get here? I get consistency coefficient of variation is of Vijay is 30%, then here 25% and Kunal has the 16%. So कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या हो जाता है? जिसका सबसे कम है, क्या है कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम है, लेस देन है, वो मोर कंसिस्टेंट रहता है. आई अगेन रिपीट, हुज हियर consistency is less, this coefficient is this here corresponding content is what? more consistent. कंसिस्टेंसी के लिए क्या रहता है? आपको अभी जो एग्जांपल में हम ऐसे भी दे सकते हैं कि क्या है कि कंसिस्टेंसी कौन मोर कंसिस्टेंस रहता है? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे मिनिमम रहेगा वो, या फिर लेस रहेगा वो. what are the merits of standard deviation? Merits of standard deviation क्या है? It is rigidly defined, its value is definite, it is based on all observation. जैसे हमने पहले लिया है ना, वैसे ही है. rigidly defined, value is definite, based on all observation, capable for further algebraic treatment, then mathematical property are used in advanced studies, it is not affected by sampling fluctuation. Now next is demerit. What are the demerits of standard deviation? Standard deviation is not easy to calculate. Rigidly defined है but not easy to calculate, not easy to understand, gives more weight to extreme values. Okay.
नाउ नेक्स्ट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे हमने कंबाइंड मीन देखा, सेम टाइप से कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे देखो d1 एंड d2 की टर्म्स अलग हैं। व्हाट इज द d1? d1 इज नथिंग बट x1 माइनस x2 बार। ओके, एंड व्हाट इज d2? d2 इज व्हाट, x2 बार माइनस x1 हियर x1 2 बार। and okay, next n1 and n2 are what the number of here items. Sigma is the standard deviation, and this is the formula for the combined standard deviation. ये formula किसका, आपका combined standard deviation का है। यहाँ पे देखो आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि फॉलोइंग डाटा गिवन द वेट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास एंड कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। देखो आपको क्या क्या दिया है, एवरेज वेट दिया है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, उसके बाद वेरिएंस बॉयज़ एंड गर्ल्स का है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का। तो यहाँ पे देखो नंबर मतलब ये n1 n2, दिस इज एवरेज हियर वेरिएशन, सो ये रहेगा आपका सिग्मा 1 सिग्मा 2, दिस इज योर एवरेज मीन्स x1 बार x2 बार। अगर मैं यहाँ पे उसे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूँ, ओके, तो वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, x1 बार, मतलब दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है x1 2, ओके, दोनों का जो मीन है अरिथमेटिक मीन, दोनों भी एवरेज मीन का, वो हमें निकालना पड़ेगा। वो क्या आएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार n1 प्लस n2। इस फॉर्मूला से मैं क्या करूँगी, पहले इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लूँगी एंड देन सब्स्टिट्यूट हियर। हमने यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे 55 मिल गया। हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है ना x1 2 की, ये वैल्यू x1 बार से और x2 बार से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, d1 d2 मिल जाएगा। वो वैल्यू आप सभी वैल्यू यहाँ पे n1 सिग्मा 1 d1, देन n2 सिग्मा 2 d2, n1 n2, एज आई सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। देखो ये क्या है आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन टेकन इन लाइब्रेरी और लेबोरेटरी। वो क्या है आपका 30 एंड 2.3 रिस्पेक्टिवली। मीन 30 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 है। उन्होंने आफ्टर क्या कहा है, आफ्टर वर्ड डिटेक्ट दैट वन ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एज अ 25 इंस्टेड ऑफ हियर 30। ओके, सो फाइंड द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। भी मुझे क्या करना है, करेक्ट मीन। लास्ट टाइम भी हमने करेक्टेड मीन निकाला था, हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे और पहले वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो x बार दिया है 30 है, सिग्मा आपको दिया है 1.3 है एंड n इज इक्वल्स टू 50 है एंड आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट समेशन। तो समेशन कैसे निकलेगी, यहाँ पे एन एक्स बार इज इक्वल्स टू 30 इंटू 50, सो वो क्या आ जाएगा 1500। हम करेक्टेड सम निकालते हैं, करेक्टेड सम इज इक्वल्स टू 1500 माइनस 25। ये देखो कौन सा था, किसके जगह पे 25 करेंगे माइनस। ओके, यहाँ इसीलिए इसमें से समेशन निकालना रहता है कि क्या करो, एन एक्स बार निकालो, नंबर ऑफ आइटम कितने थे, 50 ऑब्जर्वेशन थे ना, तो आपका जो भी मीन है उसमें इसे इंटू कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। हमें क्या मिला, 1500 माइनस 25 एंड प्लस 30 करो। ये आपका अभी क्या मिल गया, मुझे करेक्टेड सम मिल गया। अभी ये इस करेक्टेड सम को मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करूँगी, मुझे करेक्टेड मीन मिल जाएगा। सेम के यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू समेशन x2 बार डिवाइडेड बाय n माइनस हियर
x square. Okay, so summation of x square sigma square plus x square into n. यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें करेक्टेड यहाँ पे x बार x स्क्वायर मिल जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओरिजिनल ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर एंड प्लस 30 करेंगे. तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये आपका करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया. ओके, तो इस करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइडेड बाय एन करो एंड माइनस दिस एक्स बार स्क्वायर करो. करेक्टेड हमने एक्स बार अभी पहले ही करेक्टेड किया है, वो मुझे क्या मिल गया 30.1, और यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हमें क्या मिल जाएगा करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन. आपको क्या करना है कि अरिथमेटिक मीन में हमने क्या किया कि पहला वाला ऐड करो, जो गलत हो गया है उसे ये सब्सट्रैक्ट करो 25 को, और जो करेक्ट है ना उसे ऐड करना रहता है. स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हमें ये फॉर्मूला पता है. मैं ये एक्स स्क्वायर का जो है ना उसे क्या करूँगी ओरिजिनल, उसमें से मैं आपका 25 स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करूँगी और 30 स्क्वायर को ऐड करूँगी एंड देन करेक्टेड को यहाँ पे रिप्लेस करूँगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन. अभी देखो एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर क्या रहता है. फर्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में बी एक्सप्रेस्ड इन टू different units of the measure. Absolute measure of dispersion are expressed in the same unit as given in original data. Suppose we want to compare two distribution, one given the weight of group of children and other height of the group of children. So we are interested knowing that whether weight or height of the children show more variability, कौन ज़्यादा वेरिएशन देता है. बट स्टैंडर्ड डेविएशन of weight expressed in kg, we cannot say whether it is less or more standard deviation of height, okay, in centimeter. Therefore we want to measure which is independence of unit of measure. absolute and relative measure of dispersion में देखो ये दो क्या है यहाँ पे डिफरेंसेस है. नाउ नेक्स्ट है मीन ऑफ टू सीरीज में बी वाइडली डिफरेंस. मीन्स क्या रहेगा, इफ़ एवरेज डेविएशन ऑफ एनुअल इनकम ऑफ द रेसिडेंसेस इन अ सर्टन पार्ट ऑफ सिटी क्या है 500 है, उनका एनुअल इनकम क्या है आपका स्टैंड, उसका एवरेज डेविएशन 500 है. वेयर एज अनदर पार्ट ऑफ सिटी इज़ 50. we will not prove that there is relatively more variability in the income of the residents in the फर्स्ट पार्ट दैन द सेकंड. उनमें वेरिएबिलिटी कितनी है कि मीन्स फैमिली टू फैमिली कितना वेरिएशन होता है, वी कैंट से बाय द एवरेज डेविएशन. average income in the first part is 10,000 and the in second part is 1,000, then relative degree variation will be same. This can be seen if we find the ratio विच इज़ द रिलेटिव एवरेज. यहाँ पे देखो 500 डिवाइडेड बाय अगर मैं करूँगी 0.05 आ जाएगा. यहाँ पे भी 50 में डिवाइडेड बाय 1000, मतलब अगर यहाँ पे इनकम अगर 10,000 रहेगा 500 लोगों के लिए मैं कैलकुलेट करूँगी उसका क्या आ जाएगा, वेरिएशन सेम ही आ जाएगा. सो स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ परसेंटेज ऑफ अरिथमेटिक मीन दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ यूज्ड फॉर द कंपैरिजन. हम कंपैरिजन में यहाँ पे नहीं बता सकते दोनों का क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेम ही आ रहा है. सो हम डायरेक्टली इसमें से नहीं वो कम बता सकते. सो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंस मेजर ऑफ डिफरेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. सो कौन से डिस्पर्शन के मेजर से अलग अलग वो हम देखेंगे. रेंज इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ ऑल मेजर्स, बट एज इट डिपेंड ऑन ओनली द एक्सट्रीम वैल्यू और एक्सट्रीम आइटम इट डज नॉट गिव द करेक्ट आइडिया अबाउट द डिस्पर्शन. ये हमने रेंज में भी देखा था कि रेंज क्या रहती है, एक्सट्रीम वैल्यू पे ना xn माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज़ डिपेंड ऑन द एक्सट्रीम वैल्यू. सो इट डज नॉट गिव्स द करेक्ट आइडिया अबाउट द डिस्पर्शन.
Very large or very small values are not uncommon in the business data. In such a cases, the range measure is the variation in these items only, but the value in the distributions are completely ignored. क्या हो जाता है, completely ignored हो जाती है किसमें, रेंज में. नाउ नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन. हमने देखा है क्वार्टाइल वाइज Q1 Q3 पे डेविएशन होगा, तो वो क्या करेगा, आपका सेंटर वैल्यू मिड वैल्यू पे वो ज़्यादा काम करता है क्वार्टाइल डेविएशन. सो क्वार्टाइल डेविएशन इज सेम टाइप एज द रेंज. इट इज़ ऑल्सो अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, but what this is an improvement over the range, as the extremely small or large value cannot affect it. The computation were more than that for the range, but it is much less than the work involved in the calculating standard deviation. यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, एक्सट्रीम नहीं, मिड वैल्यू पे तो मिल जाता है, पर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी पे. अगर उसमें कुछ चेंज हो जाएंगे तो हमें उसमें अफेक्ट नहीं समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन टेक इनटू द अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन इन डाटा, देयरफॉर इट इज रिप्रेजेंट एज समेशन xi माइनस u बार इज इक्वल्स टू 0 फॉर एनी वैल्यू or any data. The difficulty is overcome by taking the square of the deviation. हम स्टैंडर्ड डेविएशन में लेते हैं ना कि समेशन x माइनस यू बार ब्रैकेट स्क्वायर, पर स्क्वायर करने से क्या हो जाता है, निगेटिव टर्म्स उसमें से डिलीट हो जाती है, वो हमें इसमें नहीं मिल जाती. Standard deviation is capable for further algebraic treatment, so and this make the superior of all the measures of dispersion. Standard deviation is most important measure of the dispersion, just as the arithmetic mean, and it is most important of the average. Arithmetic mean and standard deviation are used almost all the types of problems. सभी इसमें क्या हो जाता है, आपका standard deviation यूज होता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसमें कुछ दिए हुए हैं. ओके, अ सर्वे ऑफ द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कंजम्पशन, एंड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड wants to here study the pattern of dispersion of consumption of electricity. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उन्होंने हमें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर दोनों भी फाइंड करने के लिए बोला है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजिंग क्वार्टाइल फाइंड करना है हमें. ओके, सो फर्स्ट हम Q1 के लिए फाइंड आउट करते हैं. Q1 यहाँ पे देखो, जब भी हम क्वार्टाइल की बात करते हैं, क्वार्टाइल्स के लिए Q1 Q3 के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत रहती है. सो फर्स्ट टेबल में क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी Q1 इज़ वॉट n/4 एंड Q3 इज़ वॉट 3n/4. सो फर्स्ट Q1 निकालो, L1 प्लस Q1 माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू L2 माइनस L1. फॉर्मूला बाय हार्ट होने चाहिए सबके ही. एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q1. मुझे Q1 यहाँ पे देखो मिल गया 570.4. ओके, सो अभी हम Q3 फाइंड आउट करते हैं. Q3 क्या आ गया, 150. 150 मतलब वो कौन से होगा, ये आपका क्या है, यहाँ पे Q3 का क्यूमुलेटिव टेबल आ जाएगा यहाँ पे. तो आपका क्वार्टाइल क्लास हमें मिल गया, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मुझे Q3 भी मिल गया. मुझे पता है क्वार्टाइल डेविएशन क्या रहता है, Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2. ये है आपका क्वार्टाइल डेविएशन. एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मेरा क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज आपका 0.32, जो हमें उन्होंने निकालने के लिए कहा था. ओके, नाउ यहाँ पे भी सेम क्वार्टाइल डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है. मतलब आपका क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन है, कोएफिशिएंट पूछा है क्या, नहीं, ये वाला नहीं निकाला तो भी चलेगा, यहाँ तक ही निकालना है आपको. देखो, आपका क्वार्टाइल डेविएशन इज 500 एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.14. ओके,
नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अभी हमने लास्ट टाइम भी लिया था, आपका डाटा देखो यहाँ पे बड़ा है तो हम x माइनस एक्स बार एंड देन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे। फ्रीक्वेंसी नहीं है तो समेशन ऑफ f करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू दिस। क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू क्या आ गई 3.93, ओके। इसी टाइप से ये देखो, ये सभी टाइप्स के एग्जाम्पल हमने लिए हैं। यहाँ पे क्या है, खाली रिवीजन है, यहाँ पे खाली सभी एग्जांपल्स की हम खाली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवीजन ऑफ ऑल दिस एग्जांपल, ओके। दिस इज रिवीजन ऑफ ऑल दिस एग्जांपल्स, ओके। ये एग्जांपल भी क्या है, सेम टाइप से पूछा गया है। रिडक्शन इन वेट्स दिया है एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि शॉर्टकट मेथड, आपने शॉर्टकट मेथड नहीं भी यूज़ की तो भी चलेगा, डायरेक्टली सॉल्व करो, ओके। एंड योर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर से वही समेशन ऑफ एफ ऑफ यू बार डिवाइडेड यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ यू माइनस यू बार स्क्वायर। यू बार क्या रहेगा आपका, मीन, ये मीन रहेगा, अरिथमेटिक मीन है, ओके। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे भी दिया है देखो, वीकली वेजेस ऑफ द वर्कर इन फैक्ट्री इंक्रीजेस from 1000 to 14,000 and standard deviation increase from 60 to 80, ओके। सो उन्होंने कहा है कि हाउ द वेजेस बिकम लेस यूनिफॉर्म नाउ। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, वेजेस दिए हैं, ये आपका अरिथमेटिक मीन है इसका, ₹10,000 to 14,000 यहाँ पे, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 60 to 40। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट 6% और सेकंड क्या आ गया 5.7%। जिसका लेस रहेगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगा। किसका लेस है, 5.7 क्या है, ज़्यादा लेस है। तो वेरिएबिलिटी इज लेस आफ्टर इंक्रीजिंग द वेजेस, सो हेंस वेजेस हैव बिकम मोर यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा आपका, मोर यूनिफॉर्म हो जाएगा, ओके। ये सभी एग्जांपल्स देखो हमने लिए हुए हैं सेम टाइप से। यहाँ पे आपको कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो हमने लास्ट टाइम भी देखा है, कंबाइंड मीन निकालो, डाटा दिया हुआ है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपका क्या है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय ये, एंड देन उसे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, ओके। थैंक यू।